हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। आज है 20th ऑफ जुलाई 2017 एंड इट्स अ लवली डे आउटसाइड। सुबह तो ऐसा लग रहा था कि गुड़गांव में इतनी बारिश होगी कि गुड़गांव बिल्कुल चोक हो जाएगा और देयर वोंट बी एनी मूवमेंट बाय इवनिंग, बट अब थोड़ा सा अच्छा खुला खिला वेदर हो रहा है। So nice. And I got so many emails yesterday and so many, your messages. And I really felt, whenever I sit here, one is that I just love stock market, right? And two, it makes it even better when I get your comments, when I get your, sometimes you have a criticism and sometimes you have an appreciation. And I just look forward for that day. I really look forward for this time. So best time of my entire day is this, when I make YouTube videos, right? So trying to improve my quality, because yesterday also I was hearing from my tech team that I need to make sound still better. I'm trying. If you all are tech savvy guys, please help me if you can by letting me know how I can capture my voice in a much better way. And also, how can I capture my screen in a much higher definition, So I need that support if you all can help me out. And I really believe that you all are way beyond, much more technologically, talented and, knowing it so well. So I need that support if you can help me out. Okay. So that, I can reach you out with a better, my voice reaches to you in a much better way. Okay. So let's start with Nifty. So this is Nifty. Nifty में आज मुझे सुबह से ही एक वीकनेस दिखाई दे रही थी. रीजन उसका ये था कि निफ्टी ओपन हुई, ओपन के साथ ही it opened in the previous day's range only, but opening range जो थी इसकी, ये opening range है. Let me put a line. So this is the opening range of Nifty, and next 2-3 candles के बाद ही इसने इसको break कर दिया. So I was pretty confident about it that Nifty plans to go down, but जो थोड़ा सा एक मुझे इसमें एक concern नजर आ रहा था, क्योंकि I have taken trades of Nifty. I sold a few lots of Nifty. So confirmation, it came twice, thrice, so my concern was 1, 2, 3 and 4 and 5. 5 times it has touched, and if it does not cross the pivot point, I knew if it crosses the pivot point, it'll go down with great speed. That much I was sure about, but it was not crossing that, it was just getting, stuck up somewhere, it was just trying to figure out its bearing, or probably trying to figure out how to go down. But जो मेरे को एक थोड़ा सा सपोर्ट मिल रहा था अपने थॉट प्रोसेस के लिए, वो मार्केट से मिल रहा था. मार्केट में मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा कई सारे स्टॉक्स जो हैं आज अपनी उनमें जो लोग जिन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है वो उसमें प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं. तो मुझे ऐसा लग रहा था कि इसको देख के, सारा स्पेस देख के लग रहा था कि डेफिनेटली मार्केट प्लान्स टू गो डाउन. तो जैसे ही यहाँ पे एक पिवट पॉइंट पे क्रॉस हुआ, and I created my position, and of course I basically was on the sell side of Nifty. So your analysis, I don't know, abhi I was talking to my webinar member and somebody was saying, why do you say 15 minutes only? So I said, I can only मुझे 15 मिनट की भाषा ही निफ्टी की समझ में आती है, मुझे और कोई भाषा नहीं समझ में आती है. कल किसी ने मुझसे पूछ लिया कि आप 10 मिनट में देख के बताओ इसको सपोर्ट लग रहा है, रेजिस्टेंस लग रहा है. मुझे नहीं समझ में आएगा, मुझे 10 मिनट नहीं समझ में आएगा. मैं उसको देख के कोई आपको अपनी एनालिसिस नहीं दे सकती हूँ. मैं 5 मिनट देख के आपको दे सकती हूँ अपनी एनालिसिस, बिकॉज वो मैं थोड़ा देखती हूँ कभी कभी फाइन ट्यून करने के लिए. और 15 मिनट देखती हूँ, दैट आई एम वेरी गुड एट. 15 मिनट इज माई लाइक आई कैन रीड इट लाइक एनीथिंग, लाइक द वे आई टोल्ड यू यस्टरडे कि द डे बिफोर, कि मुझे ये कैंडल देख के पता लग गया था कि निफ्टी को नीचे जाना है. ऑल्दो ये नीचे गई, ऊपर गई, नीचे गई, ऊपर गई, बट अल्टीमेटली नीचे गई. बट I could read this candle, ये जो अपनी भाषा बोल रही थी ये कैंडल, वो मुझे समझ में आ रही थी. तो आप लोग भी सब इसी तरह का एक अपना कनेक्शन अपने ट्रेड्स के साथ डेवलप करिए, जहाँ की आप जो आपके ट्रेड में हो रहा है आपको समझ में आना चाहिए, आपको दिखना चाहिए, आपको वो भाषा उसकी समझ में आनी चाहिए. तो
उस तरह का एक आपका कनेक्शन होगा ना, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आपके ट्रेड्स आपके लिए बोलेंगे कि आज एंटर करना है, इस पॉइंट पे एंटर करना है और इस पॉइंट पे एग्जिट करना है। और वो आता है पेशेंस के साथ, वो आता है पेशेंस के साथ, वो आता है डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन के साथ, कि आप जब ये सोच लो कि मुझे इसको क्रैक करना ही है, इस कोड को हमको क्रैक करना ही करना है, इसको आई कैन नॉट लीव इट ओपन एंडेड, फिर आप वो कोड को क्रैक कर लेते हो। तो इसी तरह आपको, मतलब कई दिन ऐसे भी होंगे जब को आपको कुछ आप कुछ सोचोगे, कुछ परसीव करोगे और निफ्टी कुछ और करेगी, मगर उसको आपको अपना एक लर्निंग सेटअप बनाना है। लाइक लास्ट वीक आई थॉट मेरे हिसाब से निफ्टी को नीचे जाना चाहिए था, जो मेरी रीडिंग थी, बट वो नहीं हुआ वैसे, और हमारे 2-3 ट्रेड्स खराब भी हुए इससे। बट दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ, पार्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस, बिकॉज होता है ऐसे, बहुत बार होता है। तो Nifty, I am on sell side since morning because I knew its stance is negative, and I showed you what I really want, आप लोग कोई ट्रेड करो या ना करो, दैट्स अ सेकेंडरी थिंग, बट आपको निफ्टी की रीडिंग करनी आनी चाहिए। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको क्या करना है कि एक इसकी मॉर्निंग रेंज बना लो, फर्स्ट 15 कैंडल की रेंज बना लो, और उसके बाद आप देखो ये कहाँ कन्विंसिंगली उसको ब्रेक कर रही है। दैट इज योर फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज, इसको आप पिवट पॉइंट्स पे देखोगे, राइट? पिवट पॉइंट्स पे देखो, पिवट पॉइंट के ऊपर खुली है कि पिवट पॉइंट के नीचे खुली है, राइट? अगर पिवट पॉइंट के ऊपर खुली है तो स्टांस इसका पॉजिटिव है, राइट? अगर जैसे जैसे यहां दिखाती हूं मैं, पिवट पॉइंट के ऊपर खुली और ऊपर की तरफ चल दी, दिस इज अ पॉजिटिव स्टांस। पॉजिटिव यहां ऊपर खुली और नीचे चल दी, तो आई डोंट नो कौन मुझसे पूछा था, आई थिंक मेरे वेबिनार में किसी ने पूछा था, बट आई विल टेक दिस अपॉर्चुनिटी। मैं वहां पे भूल गई तो अब मैं यहाँ पे आंसर कर देती हूँ। तो समरी हैज आस्क्ड मी कि अगर रिजल्ट अच्छे आए तो क्या स्टॉक अच्छा ही करेगा? कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि स्टॉक अच्छा करेगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, स्टॉक ऊपर खुल के और फिर एकदम प्रेशर के साथ नीचे आता है, जो कि कल HUL में हुआ। कल HUL में क्या हुआ कि इट ओपन गैप अप, कितना गैप अप, बट विद इन फ्यू सेकंड्स इट केम डाउन। ऑल्दो द रिजल्ट्स वर गुड, एवरीथिंग वाज गुड, बट द stock came down, stock came down like this. So या तो आपको आइडिया हो पहले से और आप BTST करें और अपना मार्केट ऑर्डर लगा के रखें, आफ्टर मार्केट ऑर्डर लगा के रखें और उसमें टाइमली एग्जिट करें। अदरवाइज इफ यू थिंक दैट यू विल कैच अप दिस मोमेंटम, आई डोंट थिंक सो यू कैन, राइट? अगर आपने सपोज आपको पता है कि HUL का रिजल्ट अच्छे आने वाले हैं, आपने यहाँ पे बाय कर लिया, लुकिंग एट एंड हियरिंग द न्यूज, आपने बाय कर लिया, तो आपको आफ्टर मार्केट ऑर्डर लगा के रखना पड़ेगा so that it exit by itself. So although the results were good, but it came down almost to the same level. Same thing happened in Marico. Even Marico had good result, but it opened gap up. People thought it's going to go up further. उन्होंने उसको बाय कर लिया और उस दिन बहुत लोग ट्रैप हुए थे, बहुत लोग ट्रैप हुए थे। मारिको उस दिन नीचे 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 ही आता चला गया था। तो what I'm trying to tell you here कि रिजल्ट्स जो होता है ना, ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड होता है स्टॉक के प्राइस के अंदर। लोगों को पता होता है कि रिजल्ट अच्छा आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल HUL जो है, लोगों को पता था रिजल्ट अच्छा आ रहा है, राइट? तो वो कब से ऊपर चला जा रहा था, इस जगह से 2-3 दिन से ऊपर 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 जा रहा था, राइट? यू कैन सी दिस, इट वॉज ऑलरेडी गोइंग अप फॉर हाउ मेनी डेज, इट स्टार्टेड गोइंग अप फ्रॉम 5th of July, इतना ऊपर चला गया क्योंकि लोगों को पता था रिजल्ट अच्छा आ रहा है। ऑन द लास्ट डे जब रिजल्ट एक्चुअली डिक्लेयर होता है, उस दिन आपको कुछ, मतलब पीपल दोज हु डोंट अंडरस्टैंड मार्केट, दे शुड नॉट डू एनीथिंग। दैट इज व्हाट आई बिलीव, राइट? यू हैव टू डू विद ट्रेंड, यू हैव टू डिसाइड कि अच्छा आज सपोर्ट पे है। अगर जिस दिन आप सपोर्ट या रेजिस्टेंस ढूंढ लोगे ना, उस दिन सोचो आपको पता लग गया कि मार्केट में रिजल्ट हो या ना हो, यू हैव अ पार्टी, यू विल हैव अ पार्टी, राइट? आपको केवल सपोर्ट्स ढूंढने और रेजिस्टेंस ढूंढना है और उसके हिसाब से आपको ट्रेड करना है, ठीक है? सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज कि डोंट मास्टर योर सेल्फ इन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रादर देन एनीथिंग एल्स। और किसी चीज में अपने आप की मास्टरी मत करो आप लोग, ठीक है? आपको फिर कभी कहीं मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल निफ्टी ने यहाँ सपोर्ट लिया और फिर ये ऊपर चल गई, ठीक है? यहाँ रेजिस्टेंस लिया फिर नीचे आ गई, ये शॉर्ट ट्रेड्स होते हैं। सपोर्ट लिया और ऊपर चल दी, सपोर्ट लिया और ऊपर चल दी। अगर आप ये सपोर्ट्स को आइडेंटिफाई कर लेते हो, योर लाइफ इज मेड। स्टॉक मार्केट यू अंडरस्टूड, that is the whole crux of, few examples I can show you are like voltas, just like you have to see it's one day graph में
जिसने ये सपोर्ट आइडेंटिफाई कर लिया था उसने ये रन अप उसको मिल गया, उसने पैसे कमा लिए. जिसने नहीं आइडेंटिफाई किया इज लॉस्ट. ये आपने सपोर्ट ढूंढ लिया, यू हैव हैड दिस रन अप, राइट. तो आपको रन अप कहाँ से मिलेगा? जब भी आपको स्टॉक एक सपोर्ट पे मिलेगा. ठीक है. आई थॉट आज क्विकली मैं कुछ एक आधे क्वेश्चंस थे कल पूछे हुए आप लोगों ने, उनका आंसर कर देती हूँ. आई हैव अबाउट 2-3 minutes. सो एक क्वेश्चन मैं लेना चाह रही थी कि दिस इज साई कार्तिक. ही सेज दैट आई took a trade in idea based on your setup and made good profit, but I could not understand when to exit and exited very early and could not make use of full move, right? So let's see that. Let's go to idea and see what's happening in idea. So long term trade will always be identified from one day graph. वन डे का आप ग्राफ लगाइए. ठीक है. ये आपको रन अप मिल रहा है. अब आपको एग्जिट कब करना है? आप एग्जिट कर सकते हैं आप 1 आवर से, और 1 आवर से आप कैसे एग्जिट करोगे? जब 10 मूविंग एवरेज कैंडल छोड़ देती है तब आपको एग्जिट करना चाहिए, राइट. अगर 10 मूविंग एवरेज साथ साथ चल रही है, नहीं तो और काम एक आप कर सकते हो. जैसे यहाँ पे कैंडल ने छोड़ा, एग्जिट कर लो अपना ट्रेड. ये रन अप आपको मिल गया. फिर उसके बाद ये सपोर्ट पे आया है, बाय इट अगेन have this run up, again you get it on a support, again you have a run up. आपको अगर ट्रेंड पता है ना एक स्टॉक का कि इसको ऊपर ही जाना है, तो आप उसको जैसे ही आपको एक प्रॉफिट मिलता है उसको बुक करो, let it come down, let it cool down, then again you buy it on a support, again take that run up which comes up after the support and again sell it. So you will have multiple entries. You don't need to get stuck up with and don't feel bad. यहां से आपने एंट्री की, ये रन अप लिया, जैसे ही 10 मूविंग एवरेज ने छोड़ा एग्जिट किया, वेट करो, लेट इट कम ऑन सपोर्ट. इस जगह पे सपोर्ट पे आया है, बाय कर लो. फिर से इस जगह पे बाय कर लो, लेट इट बी देयर टिल देयर. ये इस पीक पे निकल जाओ ना, आप यहाँ पे खरीदो 85 और 91 पे निकल जाओ. फिर उसके बाद लेट इट कम टू अ सपोर्ट, अगेन बाय इट, 87 पे खरीदो और 95 पे सेल करो. आपको जब भी आप सपोर्ट से लोगे ना, कभी घबराने की जरूरत नहीं है. एकदम कॉन्फिडेंस के साथ लो उसको. रिमेंबर मी एट दैट टाइम कि यूट्यूब पे स्टॉक प्रो मैम ने बोला है कि डोंट नीड टू वरी. सो जस्ट रिमेंबर दैट एंड कंटिन्यू योर ट्रेड टिल द 10 मूविंग एवरेज लीव, द कैंडल्स लीव 10 मूविंग एवरेज इन 1 आवर, राइट. 1 आवर या 30 मिनट का टाइम फ्रेम ले लो अगर आपको ज्यादा वो लगता है तो 30 मिनट्स में देखो जहां पे भी ये 10 मूविंग एवरेज को छोड़ देते हैं तब आप ले लो, अपना ट्रेड एग्जिट कर दो. फिर कहाँ पे एंट्री करनी है? जब ये सपोर्ट ले फिर आप एंट्री कर लो. फिर साथ साथ चलते रहो, जहां पे 10 मूविंग एवरेज छोड़ता है वहां पे एग्जिट कर लो. फिर सपोर्ट लेता है तो फिर बाय कर लो. योर एंट्री इज बाय लीविंग 10 मूविंग एवरेज एंड योर एंट्री इज विद द सपोर्ट एंड एग्जिट इज विद लीविंग 10 मूविंग एवरेज. इफ दैट इज क्लियर, MACD RSI कंबाइन करके अपने प्लेटफॉर्म पे, जो हमारा प्लेटफॉर्म है, वी आर डन. वी डोंट नीड टू वरी, राइट. So this is how you will do this. Fine. I hope I'm making sense. And एक और देख लेती हूँ मैं, एक और किसी का भी था question that so wonderful videos. I have found a stock Wockhardt. मैंने ये लगा के रखा है, आपके लिए लगाया है. अभी quickly मैं देख लेती हूँ. I have a minute with me. So this is Wockhardt. So this is a good stock that found. I'm really happy that you all are seriously following what I'm saying. It is a good breakout that you have looked into. अगर आपने यहाँ पे या तो बॉटम से क्रिएट किया होगा आपने ट्रेड, I don't know where did you create the trade from, but it is a good trade that you have created. And अब क्या है, आपको इसको एग्जिट करना है. देखो इसका अपसाइड कहाँ तक है? 701 तक है. बट आपको लगता है कि मार्केट में एक डायरेक्शन चेंज हो रही है, राइट. निफ्टी जैसे सपोज एक्सॉस्ट हो रहा है, तो आप 1 आवर का चार्ट लगा के रखो. जैसे इसमें कप शेप फॉर्म होगी, कैंडल्स 10 मूविंग एवरेज छोड़ेगी, आप एग्जिट कर जाओ. ठीक है. आज इतना ही. प्लीज सेंड योर क्वेरीज. आई लव टू आंसर योर क्वेरीज एंड आई विल बी रियली हैप्पी इफ इट मेक्स अ लिटिल डिफरेंस इन योर अंडरस्टैंडिंग. जो मैं बोलती हूँ आपसे, अगर आप उससे अपनी ट्रेड को 1 या 2% भी रिफाइन कर लेते हो, आई विल बी वेरी हैप्पी. बाय बाय. गुड डे गाइज and see you tomorrow. See you the same time. Please send your questions. I'm most happy answering your questions. Bye bye. Good day.